I got a lot of credit for so many things which actually belong to this crew out here. And it is, I was blessed that the universe conspired. Today, like Bharti was mentioning earlier, there is a documentary on, this is might interest now all my friends at the back, on the journey of Rang De Basanti, called Rubaru. So face to face. I would request Vaida ji, I'll trouble you once again, Ronnie, once again, to please release a documentary. And this cannot be complete by the person who coined Rubaru. Prasunji? Next. आगे. नहीं, सब करेंगे अभी, सभी आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता. Because the stage is full. 1 or 3? 3, please. 3. हाँ, मैं. So this is a documentary which has been directed by Bharti. She's taken 5 years, 6 years. Every time I पूछता था हो गया, it took her like first 2 years, then 3 years, then 5. Then after 7 years, finally, it was not. I went and took a transfer from a machine because she said, क्या है? नहीं, there's a reason behind this. It was very interesting. She said every year something is happening from Rang De Basanti. Mohit Chauhan, sir. And she kept saying कि कुछ ना कुछ हो रहा है for me to keep updating the documentary. अभी कोई आ गया इंडिया गेट पे, अभी उसने उसका नाम लिया, अभी Chief Justice of India has given an interview, अभी the Air Force. So she said, I can only do when I feel that I've got all the material. A very, very interesting part of the film after it was made and went out is the universe that conspired with us. Definitely the people of this country. The media was so understanding of the film, so understanding, that they understood the idea behind the film, they understood the film, and they kind of snowballed the idea further. One of our dear friends who was always stood with us and kept taking it to theaters, Ajay is right here. Ajay, you can't escape this. You'll have to share briefly, and then I would request you to present the screenplay book to Kamleshi and Renzel and Amir also. Yeah, Ajay? Good evening, everyone. Just want to congratulate Rakesh, Amir, Ronnie, and the entire team, Prasoon, the whole team of Rang De Basanti. I mean, I'm a cinema operator, but before that, I'm a movie buff. So it really impacted me when this movie came out. And I remember it was like, obviously 10 years ago.
in Priya. That's the time I first time met everyone. And on a personal level, it also started some great friendships. I got to meet everybody properly. And I think everybody was sitting in the office and playing, I think it was, no, Trivial Pursuit. And it was a very intelligent sort of, game going on. I was completely lost. And I asked Amir to come to the other room and meet me because I was so fascinated then Mehra with the film. So that's all I'll say. It's a wonderful moment that you're celebrating 10 years because it's really one of the top movies ever made in India. And at least it'll remain my top favorite for times to come. And congratulations to the entire team once again. Thank you, Ajay. We would request Amir. And to present the first copy to Kamleshi and Renzel, please. And Ronnie, please. Ronnie, you have to. Yeah, please. Oops. Just open 2 copies. Yeah. 2 copies. Seriously locked up. Trick है जिसने भी बंद किया है नहीं है का ट्रिक कॉपी बड़ा प्यार से बंद नो we've all got it now. You just read all. So this is a screenplay. It has the lyrics. It has the storyboards. It has anecdotes. It has a wonderful special interview with Prasunji, A.R. Rahman, and Amir about the Rang De Basanti movement. It has stuff from Ronnie, what he felt about it. Forward from Kamleshi, Renzel. Yeah. Guys, गणेश जी ऐसा कैसे हो सकता है आप आए और कोई नाचे ना ये मेरे को समझ नहीं आ रहा प्लीज इन लड़कों को एक बार और नचाइए गाइस अ बिग वन फॉर दैट one group photograph and then yeah for all of us yeah thank you very much I think I've got another job here direction नहीं चली मैं MC तो बन सकता हूँ अजय अरे यार co-conspirator
जो जिसमें फिल्म के अंदर पैसा जानता है उसे हम कंपनी में लूटेंगे, खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और इन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ओए, ਸੁਪਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਦੇ ਗੰਭੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਸਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਸਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੜਕਣ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਗਮ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਰਤ ਰੰਗ ਦੇ ਦਰਪਣ ਮੋਏ ਮੋਏ ਤੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਯਾਰਾ ਮੋਏ ਤੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोए आठ दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं देने के उसमें लूटेगा। अरे यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोए तू रंग दे बसंती यारा मोए तू रंग दे बसंती मोहे मोहे 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 तू रंग दे बसंती ओ मोहे रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोहे रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती। और बिस्मिल्लाह संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिल्म के अंदर पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे। काकुरी कबाब थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू ये सब तू मिला मिला ले Hello. Shilpa here. Yeah, are we supposed to? Yeah, we've received some requests, Shilpa. I believe some people want some interaction from the media. Is that true?
So I'll just request everyone to be here. Take stools, please. Amir, Prasun ji, Ronnie, Kamlesh ji, आइए, sit. Yeah, yeah, yeah. No, Amir wants to. Main, he's by invitation. हम शुरू करें. Right? अतुल जी. Boss, एक. We need one more stool for Amir when he comes out from the loop. We need one stool that side. Shilpa, will you conduct this? Rakesh ji, here. Yeah, go ahead. Sir, yeah. Absolutely. सर अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म बनने के बाद एक फिल्म मेकर को लगता है कि काश ये मैंने इसमें ये चेंजेस होते, ये मैं और कर सकता, ये मैं वैल्यू एडिशन कर सकता. ऐसा कभी आपको रंग दे बसंती देखकर 10 साल बाद ऐसा कभी लगा आपको, 10 साल में आपको? सच सच बोलो कि ऐसी मतलब एकदम सच. एकदम सच. ओके. मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता है कि जो हमारा काम होता है वो कभी पूरा होता नहीं, हमारे हाथों से छीन लिया जाता है. और थोड़ा मौका और मिलता तो इसको थोड़ा और कुछ करते, थोड़ा ये करते, थोड़ा वो करते, तो वो फीलिंग तो हमेशा आती है. बट वो किसी भी आर्टिस्ट को आएगी, भले वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, पोएट हो. बट कई चीज़ें ये कहने के बाद मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक बार हो जाती हैं तो उनको चाहे आप जितना रिवाइज कर लो वो वापस शायद उनमें वो पहली वाली बात ना हो. तो दोनों चीज़ें सच हैं. आपका उस टाइम मेंटल सिचुएशन क्या है तो तभी पता चलता है. तो रंगदे के साथ कई बार हुआ है हमारी ये फीलिंग आई है कि इसको थोड़ा यहाँ से छोटा करते, थोड़ा बड़ा करते, इसको ऐसे करते वैसे. जैसा कि आपने बताया कि आमिर ने काफ़ी वक्त लगाया फिल्म को साइन करने के लिए और ग्रीन सिग्नल देने के लिए, कभी आपको उस दौरान ऐसा भी लगा कि आमिर के बगैर भी बन सकती है और कोई ऑल्टरनेटिव था आपके पास? आई थिंक आपने वो मैं क्लियरली बता नहीं पाया आपको. 20 मिनट में आमिर ने हाँ बोल दिया था. मेरी तरफ से बनाने में 18 महीने और लगे थे और उनको वेट करना पड़ा था, पर वो वेट किया था उन्होंने. 20 मिनट की नरेशन थी, 25 मिनट की, और उसमें हाँ हो गई थी. हाँ मतलब हम दोनों समझ गए थे कि ये फिल्म कर रहे हैं और अब नेक्स्ट लेवल क्या है, कैसे करना है, कब शूटिंग है, वो एकदम शुरू बात हो गई थी. और वो सिर्फ आमिर के साथ ही नहीं, हम सबके साथ ही ऐसा हुआ था. Okay, now it is. Hi Rakesh. This Hi. is Shankhan from the Hindu. Hey. Hi. So this whole defining image of this, as we see in the poster. Yeah. This so this sort of defines Rang De Basanti in our minds, and it's so sort of Yeah. become an iconic sort of thing. So how did you decide to make this this shot the poster? I mean, It was very organic. There was no decision. In fact, Ronnie liked the image, and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. यार इसमें आमिर खान की शक्ल नहीं है, तुम मेरे को पीट क्यों दिखा रहे हो? तो ये कैसा हो गया था. तो हमने कहा सही है. हमारा पोस्टर 2 भी था. एक दिस वाज द टीजर कि हम टीज करें लोगों को. और एंड फर्स्ट वुड बी द बैक्स एंड देन दे वुड टर्न अराउंड in the next poster. So जो होता है, it was a strategy.
But teaser poster came back to us. And then मजे की बात यह है कि when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000. So Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media. And then it kind of stuck on and became cult, yeah. Just one more thing related to the music, like the choice of couple of singers, like Mohit. I mean, this is before he became the star that he became, and Daler sort of for the title song. How were those decisions? Whose were they? Yours and AR's together, or Prasoon was also sort of? It's not important. So I still remember Daler Paji came for the title song, and Rahman being Rahman, he was inside his room, and nobody could go in. And myself and Prasunji were outside, and he started speaking to Prasunji, and he ordered an elaborate dinner. He said, ये तो Italian लहंगे. हाँ, I was quiet for 1 hour. Then he told, ये कोई Italian बंदा बैठा है, कोई director है. मेरे बाल लंबे होते थे उस time. So, अब उनको अंदर से गुस्सा आने लगा कि यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये मैं कमरे में बुला के नहीं ले रहमान मेरे को गाना गाने के लिए. और and Rahman was doing the tune better and better. 3-4 घंटे हो गए. Somehow Prasunji is keeping him calm. और फिर I started speaking in Hindi from Italian. And you will not believe it. He went into the room when the song was ready. In one single take, start to finish, he nailed the song. Wow. One single take. Wow. That was it's delay. amazing. No, Yeah. he actually felt that, I don't know how these guys are working because you don't know. Because I was also, we were working on the script also, to talking various things. And he was there. He first was taking interest and he ordered food. After that, he went off to sleep. And suddenly, AR does like that. Suddenly he says, let's record. And he was sleeping, so we woke him up. And we were thinking like he will be able to, now will take a lot of time, it seems. He went there, and that we must give to Diler Paji, that he went there and just one take, he gave us the whole song. So it was wonderful. I think that's what the talent is. And Mohit, here we worked earlier, and when we were talking about this song, and I think AR also likes Mohit's voice. He is already heard. And then I think ideas met. Rakesh ji, me, AR, I think it's jointly decided that we should. And since I know Mohit very well, so I was the one who made the call. And he was next day there and he recorded Khoon Chala. So I think it is all collaborative and joint decision. But we are very happy that, all this came together. And Mohit really added a great dimension to the film. Thank you, Mohit. या प्रसून जी की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती आ रही है. 10 साल हो गए. तो मोहित को फ़ोन लगाया कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ. मोहित सुबह की जो पहली फ्लाइट थी कुछ ले कर को राके वो सुबह सुबह पहुंच गए. बट हम तो रात को काम करते हैं वहाँ पे और 6:30 बजे 7:30 बजे पैकअप होता है. हम आप पैकअप करके अपने होटल जाके सो गए. या आए 8 बजे की स्टूडियो खुलेगा, कुछ होगा, रिकॉर्डिंग होगी. I remember. Then we recorded that evening. And when the voice came out, when he sang, it's like, when you're made for each other. That song was made for Mohit, and Mohit was made for that song, and it just happened. Hi, Faridun from Bollywood Hungama. Congratulations to the entire team for a fabulous film. Amir, my question is to you that the entire candlelight movement that started with Rang De Basanti and it later just percolated into real life as well with the entire Jessica Lal murder case and many other cases. How do you look back at that particular thing? I think ये फिल्म का जो असर हुआ बहुत गहरा हुआ ऑडियंसेस पर और एक बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म लोगों के जहन पे छा गई, उनके जज्बातों के साथ घुल मिल गई. तो लिहाजा आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज अ पहली दफ़ा हुआ कि लोग बाहर निकले अपने घरों से और उन्होंने
किसी चीज़ के लिए एक होके आवाज़ उठाई। तो ये फिल्म की ये फिल्म का कमाल है कि फिल्म का इतना गहरा असर हुआ न सिर्फ हम लोगों पर जिन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हमारी ऑडियंसेस पर भी। जी। Good evening, Amir. Prasoon, one question to you about Khoon Chala, the song that you wrote. I think very, very powerful lyrics somewhere. How do you look back at Khoon Chala? If you can just tell us. Oh, Khoon Chala is a very special song to me, and I still feel that एक line मैंने लिखी थी, ले गाढ़ी उम्मीदें, वो गाढ़ी वर्ड में यूज़ नहीं कर पाया और लास्ट तक मैं सोचता रहा यार ये मैंने डालना चाहिए था वहाँ पे, बट everything else, you know, it's you know, Faridun, about poetry, so you will always you know, remember this song like this, because you know Faridun comes from the great tradition of poetry, and I think it's अगर आप उस मेरे लिए सॉन्ग का टेस्ट होता है कि अगर आप उसको एक कागज़ पे लिख के, कोई म्यूज़िक ना हो, कुछ नहीं हो, वो रखा हो आपकी टेबल पे, कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, क्या उसमें केडेंस है, मीटर है, रिदम है, कल्पना है, लेयर्स हैं। मुझे लगता है ये गाना एक कविता की हैसियत से, एक शायरी के हैसियत से क्वालिफाई करता है। ये वन ऑफ दोज सॉन्ग्स विच आई फील हैज़, इसका अपना वजूद है एक कागज़ पे, और वो इस गाने की खासियत है। प्रसून जी, इधर हरी मृदुल जी। अरे जी, मैं फरीदुन के इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह के शब्द पहले हमारे पास सुने नहीं गए थे फिल्मी गीतों में। आपने क्या जद्दोजहद आपके मन में थी, क्या आपके मन में ये था कि कुछ नई शब्द देने हैं, या यही शब्द सटीक होते थे, चाहे मोह मोह हो, चाहे खून चला हो, अन्य जो भी हैं शब्द? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई चीज़ों के लिए मैं आमिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरी परवरिश फिल्मी गानों पर नहीं हुई। मैं उत्तराखंड से मेरी पला बढ़ा, और मेरे घर में फिल्मी गानों का बिल्कुल ही रिवाज नहीं था। हम लोग फिल्मी गाने नहीं सुनते थे। मेरे पेरेंट्स दोनों क्लासिकल म्यूजिशियन थे, दोनों ने मास्टर्स किया है म्यूज़िक में, और हम लोगों को ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक सुनने को मिलता था, और फिल्मी गानों का कैसेट या कोई कहीं सीडी, ऐसा, और सीडी तब होते भी नहीं थे, ऐसा कुछ। तो मेरी जो वोकैबुलरी थी, मेरी शब्दावली थी, उसमें दिल जिगर जानम नहीं था, और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं इस तरह के गाने लिख सकता हूँ। और मैं अपनी तरह से कविता पढ़कर बड़ा हुआ, और जब मैंने लिखना शुरू किया, राकेश जी को मिला, और कुछ और ऐसे हैं, इवन यू नो यश जी को और आदि को, कि उनको लगा कि ये कुछ नयापन है, कुछ फ्रेशनेस है, मेरे शब्द कुछ अलग तरह के थे। तो मुझे लगता है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब का, जिन्होंने मुझे दिल जिगर जानम से मुख्तलिफ जो मेरी एक पहचान थी उसे पनपने दिया, और उसे प्यार दिया। तो पौधा तो वही पल बढ़ सकता है जिसको आप सींचें। तो मुझे सींचने के लिए एक धरती और धरातल और एक उर्वर भूमि जिन्होंने दी, उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। Good evening, Amir. Amir, hi. Amir, my question is to you. You said this film has changed you. So, is there any message in this film that resonated with you, that has stayed with you? Yeah, you know, जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूं, अक्सर हमारा ये। तो ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ़ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जो बोलते हैं ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने हैं तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का, कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है, और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है।
आई फील. Amir, it must be asked your question. Your remark on intolerance has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So, what is your reaction to that? To how everybody else has taken your statement? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज़ हैं, और उनकी जो नाराज़गी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली. और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज़ होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था. उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है. आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है. तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा. मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता. तो वो मैंने कभी कहा नहीं. तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी मैं समझता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है. इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी. मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूंगा. ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे. बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूँ तो 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता. आई गेट होम सिक. मुझे वापस आने की जल्दी होती है. मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ आमिर, जस्ट टू ऐड, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ, और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ. अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है. आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीं पर देखते हैं आप रंग दे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं. मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं. आमिर 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 जी, कि वो कंटिन्यू करेंगे या ये डिसीजन हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि Can I add come in here? मैं दिल्ली चेयर शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास. When I got the first 3 Incredible India ads to do, and I got the call from ministry, and I called Prasun ji, आप लिखेंगे? He said हाँ बिल्कुल. And car journey used to be 2 hours every day going to the location. I called आमिर यार इंडिया के लिए करना है. ये मेरा बिल्कुल एकदम सही है कि no question asked, nothing. So I think I've answered that. Let's not go into your fears. They are your fears. You'll have to sort them out yourself. एक मिनट राकेश जी, मैं इसको आंसर कर देता हूँ. देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन कोई, पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया, और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए. देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए. लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत रहेगी. तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए, और इसकी गरिमा को समझते हुए
जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया, और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। आमिर 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 आपसे ये सवाल है कि जी। आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था। जी। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है। जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की जी, पॉजिटिव, जी। उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से। तो कैसे जी। रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ। ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ। और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये दो चीज़ें सबको बताई गई। तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। तो जो लोग नाराज़ हुए हैं, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और आपके ज़रिए मैं ये आज साफ़ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं। कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक ज़बान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ यही थी, और आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आवाज़ उठाऊंगा कि इस देश को हम कमज़ोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज़ कही है कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूँ इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। ना मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आम इंसान हो, ज़रूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और याद दिला दूँ। देखिए, मैं कहूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूँ, उससे कुछ फ़र्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविज़न शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूँ, सत्य में जो, क्या ज़रूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूँ। मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूँ, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहूँ या मतलब मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं, वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूँ। मेरे परदादा जो हैं
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उस ख़ानदान से मैं हूँ। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। मैं किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से आप? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूँ, और हर्ट में इसलिए हुआ हूँ कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूँ। मेरी जवाब पूरा हो जाए। या यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, पीपल डोंट नो व्हाट आई हैव सेड एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है। तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज़ बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलतफहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? और ख़ास तौर पे अब जो माहौल है देश में, इंटॉलरेंस भी उठ रहा है, प्लस पेट्रियटिज्म को लेके भी हम काफ़ी चीज़ें उठाने लगे हैं। मतलब ये इंटॉलरेंस बड़ा एक फैशनेबल वर्ड हो गया। इसको हम ऐसा यूज़ करने लगे जैसे कि मतलब भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लगा देना, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना, क्योंकि वो खाना हजम नहीं होगा नहीं। So I think it's nothing like that. We are a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Earliest I remember Shaivites and Vaishnavanites there was a bloodbath between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So इसमें intolerance की बात नहीं होती। Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है। रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं। और मतलब कुछ कर मेरा सोचना पड़ेगा। कमलेश जी, ये तो आप प्लीज़, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू कीजिए। नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है, हाँ वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, मगर स्पिरिट की बात है। उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है चलने की। मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आज़ाद, वैसे हम लोग वापस आ जाएं। That वो पार्ट बन सकता है। Rakesh here. Amir, my question Rakesh. Amir, recently in an interview of Sunny Leone has become quite popular on the social networking sites, and you tweeted in Who her is that? support. Sorry, raise your hand. Yes. Yeah. So. नहीं पूछने दो यार बेचारे। हाँ नहीं, sorry, no, I couldn't see her. Will you introduce yourself, please? Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. For Amir, actually. No, we are all hearing. यार, सब लोग कान बंद कर लो. So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future a film, would you want to work with her, or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे, मुझे तकलीफ़ हुई। और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा। उनका जवाब था शायद नहीं। वो बात भी मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो। तो
मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की। उनकी जो पर्सनल लाइफ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंसान है, वो एक औरत है और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें। ये भी बात। एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि देखिए किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट्स के नाम पे कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं। कोई व्यवसाय जो है वो ज़रूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो। तो क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं कि तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है। जहां तक बात रही जब वो मेरे सामने आएगा, क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा। At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society, we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, राकेश आमिर यहाँ पर, आमिर आपके सामने यहाँ. Rakesh, I have a question for you on the film. I remember reading a conversation, an interview of Manoj Bajpayee, where he said that he was in the running for Amir's role, and he had to drop out of the project because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj only, because we share a very, very deep bonding since Hux. It was my first film, and when you work on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, I've seen it. Yeah, he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years, and we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything, and then it happens. So that's the thing. Yeah. Amir, no one doubts your patriotism. We all know that you're a proud Indian. We're proud of you. One person whose name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she have? More or less the same. I think also somewhere I should not have shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that, and she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मज़हब हैं इस देश में. तो आप मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए. मेरी वाइफ जो है वो हिंदू हैं. जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं. फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है,
निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कज़न है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम हैं। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड यू नो, एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं। हम अपने मज़हब को कभी नहीं देखते। आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी। Hi Amir, this is Urvi here to your right. Urvi, हाँ Urvi, हाँ. Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today, जी. and he was a co-star, जी. and he was there in the film. So has anybody spoken to him, and have you all congratulated him yet? I didn't get to know you. You're just telling me for the very first time. much. We'll immediately. He's in We will Jaipur right definitely now. congratulate And him. he's missing the evening. I think I met him yesterday, so he did inform me that So he has been very warm congratulations to Anupam. No, 3 cheers for Anupam ji. If he's आमिर, कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंग दे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी, बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था, आखिर में भी वो आई थी। तो अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर, या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें अभी। कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगा, आप सबको देना चाहूँगा, देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की। और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी दी है, हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की हैं। मैं शायद भूल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा, हाँ है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आमिर, थैंक यू। आमिर हियर, थैंक यू। आमिर, हम सभी थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वी ऑलवेज फील लाइक दिस इज माय लाइफ चेंजिंग फिल्म। सो which one was yours लाइफ चेंजिंग फिल्म? यू नो, मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है। मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, 3 इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया। लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर। मुझे बहुत कुछ समझ में आया ज़िंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में। तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर। ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे। कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर। जी। That's the last question. आप उस 4 साल पहले मैं विजय दिवस पे लद्दाख गया था, और शाम को फंक्शन था, और हम सब ने, बहुत प्यारा माहौल था, सब ने एक कैंडल जलाई थी, 516 कैंडल्स। टाइगर हिल के वॉर में 516 जवान, यंगस्टर्स, सोल्जर्स मारे गए थे, तब जाके हमने टाइगर हिल जीता था। वो कोई एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी वहाँ पे। तो अ ट्रू जर्नी ऑफ अ हीरो, एंड कमलेश जी taught me that in my earlier years when I was learning story writing and screenplay under him, that a hero goes into the dark cave, fight all the demons, comes out, gives his life, only then he is a hero. तो इसमें हैप्पी और ये सब ये हमें पढ़ा दिया गया है बड़ा। अभी जैसे जैसे सिनेमा और निखरेगा और सच्चाई को देखने का और
हमारे अंदर आदत बढ़ेगी ऑडियंस को, और भिन्न भिन्न तरीके का सिनेमा हम देखेंगे जो आजकल हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है. और आप यू आर सो राइट कि रंग दे वाज वन ऑफ दोज अर्लियर फिल्म्स. नाउ तो यू सीइंग मोर, मच मोर, एंड इट वाज समवेयर अ कैटलिस्ट आल्सो, लाइक सिद्धार्थ वाज सेइंग अर्लियर. So I don't think it's about happy ending and tragic ending. The greatest love stories in the world, Laila Majnu, Romeo Juliet, Shiri Farhat, Soni Mahiwal, they're all tragic. So it's not about happy, it's about whether it was fulfilling or not. That is more important. It's a very interesting fact. I really came to me much later. Just a couple of years back, Shailendra, our lyricist, had written line long time back, sometime in 50s. वो लाइनें मैं पढ़ के मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लाइनें रंग दे बसंती की आत्मा है. लाइनें ये हैं कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देश प्रेम के लिए मिलेगी सजा अभी भी फांसी की. ये शैलेंद्र ने 1950s में लिखा, 50s में लिखा था. मैंने अभी पढ़ा 2 साल पहले, मैंने कमाल है. फिर से बोलिए. भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, मतलब इस मुल्क में पैदा मत होना, क्योंकि देश प्रेम के लिए अभी भी सजा मिलेगी फांसी की. तो ये स्पिरिट है रंग दे बसंती. दंगल इज ऑलमोस्ट 90%. दंगल में अभी देखिए एक चैलेंज मेरा बहुत बड़ा बाकी है. आप सबको तो ये पता ही था कि दंगल के लिए मैं मोटा हुआ हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि दंगल के लिए ही मुझे वज़न कम भी करना है, बॉडी भी बनानी है, क्योंकि जो फिल्म की शुरुआत है, जो पहला 10-15% फिल्म का, उसमें मैं नेशनल लेवल रेसलर हूँ, जैसे सुशील कुमार जी. तो अब वो जो मोटापा का जो पोर्शन था, बूढ़ा जो पोर्शन था, वो अभी ख़त्म होने को आया है. और अब जो है मैं वज़न कम करना मैंने शुरू किया है, और वो जो 10-15% है वो जून में शूट होगा. तो नाउ माई नेक्स्ट चैलेंज इज टू एक्चुअली कम बैक इन टू शेप. जैसे गजनी में था, जैसे गजनी में मेरी बॉडी थी या धूम 3 में मेरी बॉडी थी, वो बॉडी मुझे अब बनानी है. तो मेरा वज़न अभी घटना थोड़ा शुरू हुआ है. आई हैव पुट ऑन 25 किलोज. मैंने ये फिल्म के लिए 25 किलो मैंने बढ़ाया, तो 25 किलो मुझे कम करना है. और ना सिर्फ 25 किलो कम करना है, बॉडी भी बहुत सुशील कुमार की जैसी एकदम बहुत मस्कुलर बॉडी, वेरी लो फैट, ये बॉडी बनानी है. तो वो अब मेरा सिलसिला शुरू हुआ है. हाँ 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 करेक्ट. हाँ आई होप यार, आई होप, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया बहुत शर्मन और मैडी के साथ काम करके. राजू मुझे बता रहा था कि शायद 3 इडियट्स का वो शायद कुछ ना कुछ वो स्टोरी उन लोगों को मिली है, जिससे वो शायद उसका सीक्वल बनाए, ऐसा कुछ वो बात हो रही थी. आई होप. अभी मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सुर्खियों में डाल देंगे, फिर मेरे गले में आके बात अटकेगी दोबारा. ब्रेकिंग न्यूज़. तो शायद ऐसा कुछ हो, अभी देखते हैं आगे. और जो आप लोगों ने मेरा जो नाम बदनाम किया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब आप थोड़ा मेरा नाम सुधारें भी. जो सच बात है वो लोगों के सामने रखें प्लीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.